سلام سلام بابا. بابا. سلام سلام. بابا. سلام بیٹا. سلام. بابا ہم جانے کے لیے تیار ہیں، آپ کی اجازت ہے؟ بابا کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے ہمراہ چلا جاؤں؟ نہیں، اس کی ضرورت نہیں. تم یہیں میرے پاس رہو اور اپنے بھائیوں کی عدم موجودگی میں تمام خاندان والوں کو سنبھالو. جیسا نبی خدا مناسب سمجھیں. آیا نبی خدا سفر کے لیے ہماری کوئی رہنمائی نہیں فرمائیں گے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں اس قحط کے نتائج سے کافی پر امید ہوں، لہذا نصیحت کرتا ہوں کہ اس سفر میں پیش آنے والے واقعات کو خیر الصلاح سمجھنا، نہ کہ مشکلات اور رکاوٹیں. ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. ہمارے حق میں دعا کیجیے گا بابا. خدا نگہدار ہوں. ہمارے لیے دعا کیجیے گا بابا. خدا نگہدار. اطمینان رکھیے، ہم خالیات نہیں لوٹیں گے. خدا نگہدار. خدا نگہدار. سب حرکت کریں گے. اپنا خیال رکھنا. خدا بندہ انہیں کامیاب اور صحیح و سلامت لوٹانا. آمین. بانو زلیخا کہاں؟ اب کہاں جا رہی ہیں؟ سنا ہے کہ یوزارسیف سفر سے واپس لوٹ رہا ہے. اسے دیکھنے کے لیے نیل کے ساحل تک جا رہی ہوں. کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ آئے گا بھی؟ ہاں مجھے یقین ہے، جلد بدیر وہ ضرور آئے گا. دیکھا تم نے کتنی سادہ اور بھولی ہے، گویا تمہاری طنزیہ باتیں اسے سمجھ ہی میں نہیں آئی. لگتا ہے اپنی عقل سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے، لیکن میں پھر بھی ان کے لیے احترام کی قائل ہوں. دیوانے بھی قابل احترام ہوا کرتے ہیں. ہمیشہ بچے اور جوان یوزارسیف سے متعلق جھوٹی جھوٹی خبروں سے اسے بیوقوف بناتے رہتے ہیں اور اس سے انعام ملتے رہتے ہیں. اس کے باوجود کہ اب ان کی تمام شان و شوکت ختم ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی وہ نا امید نہیں ہوئی ہے. یوزارسیف کی خبر سنتے ہی انہیں دیکھنے کے لیے چل پڑتی ہیں. یوزارسیف تو ہر روز کسی نہ کسی شہر میں ہوتا ہے، اس سے ملنا اتنا آسان نہیں. کیا ہوا؟ یہ آپ کا یوزارسیف آیا نہیں؟ منتظر ہوں، بالآخر کبھی تو آئے گا. میرا یوسف ضرور آئے گا. آپ کو یقین ہے؟ ہاں مجھے یقین ہے وہ آئے گا. سورج ہمیشہ تو بادلوں میں نہیں رہا کرتا. بس کریں بانو، بس کریں. کیا آپ نے سنا نہیں کہ وہ کسی ایک شہر میں نہیں ٹھہرتے؟ آپ کی آنکھیں یوسف کے انتظار میں سفید ہو گئی ہیں. اب تو بس کر دیں. جانتی ہوں وہ بے وفائی کرتا ہے. اب میرا کام انتظار کرنا ہے اور یوسف کا کام انتظار کروانا. میں یہاں تب تک آتی رہوں گی جب تک کہ وہ آ نہیں جاتا. اس مسلسل انتظار سے آپ تھکی نہیں؟ آخر اور کتنا انتظار کریں گی؟ تم عاشق نہیں ہونا، میری تو پوری زندگی انتظار ہے. اگر انتظار نہ کروں تو کس کے لیے زندہ رہوں؟
ये इंतजार मुझे पुरुम्मीद रखता है, मेरी जिंदगी को एक मकसद देता है। यूसुफ की खुशबू आ रही है, यूसुफ की खुशबू आ रही है। यूसुफ यही कहीं है, मैं उसकी बू महसूस कर रही हूँ। आपको वहम हो गया है बानू। यूसुफ यहाँ कहाँ से आए? नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर यही कहीं नजदीकी है। जरा गौर से देखो। पागल दीवानी, भला यूसुफ यहाँ कहाँ से आए? माफ कर दीजिए बानो, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है, मैं बेख्तियार हो गई थी। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, गिला तो मुझे यूसुफ से है। अगर वो आ जाता तो ये लानत मलामत तो न सुननी पड़ती। लेकिन वो आएगा, बिलाखिर एक रोज ये इंतजार खत्म होकर रहेगा। ये ज़मीन फ़िलहाल बंजर है, लेकिन जल्द ही कहत ख़त्म हो जाएगा। ये ज़मीन मिस्र के बहुत से गरीब काश्तकारों के लिए काफ़ी होगी। अब ये तमाम मेराज़ी हुकूमत मिस्र की मिल्कियत है। हमें इन सारी ज़मीनों को नादार काश्तकारों में तकसीम करना होगा ताकि वो इस पर अपने लिए काश्त करें और हुकूमत को महसूल अदा करें। ये तो बहुत अच्छा होगा। इस तरह तमाम गुलाम साहिब ज़मीन हो जाएंगे। नहीं मालूम इस वक्त अहले किनान पर क्या बीत रही होगी। वो कहत में क्या कर रहे होंगे। है काश मेरे बाबा और भाई यहाँ होते और वो इन वसी जमीनों पर काश्तकारी और गल्लाबानी करते। जब ये इतना बड़ा दरियाई नील इस तरह खुश्क हो गया है तो जाहिर है कि किनान की हालत क्या होगी।
दुरूद बर सालारे कारवान बाबिल, आपने ये गंदम कहाँ से हासिल की है? आप पर भी दुरूद हो। मिस्र से आए हैं, आप भी जाइए, खाली हाथ नहीं लौटेंगे। क्या अभी काफी मसाफत बाकी है? वो मिस्र की हिफाजती चुंगियां नजर आ रही हैं, ज्यादा दूर नहीं है, करीब है। सिपास गुजार हूँ, खुदा निगहदार। खुदा निगहदार। जल्दी करो, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। वाह, अब तक तो बड़ी बेजारी से मिस्र आ रहे थे, अब क्या हो गया? अब तक कोई उम्मीद जो न थी। कहाँ जा रही हैं? हवा बहुत सर्द है, आप बीमार हो जाएंगी। सर्दी का इलाज तो गर्म लिबास से किया जा सकता है। अगर आसमान से पत्थर भी बरसे तब भी मैं जरूर जाऊंगी। रुक जाइए, मौसम के बेहतर होते ही साथ चलेंगे। क्या गोशा नशीन हो जाना रस्म आशिकी है? उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इतने दिन बैठी, इंतजार किया, क्या हुआ? क्या यूसुफ आए? आप इस मुसलसल इंतजार से थकी नहीं? आखिर तुम लोग समझती क्यों नहीं? हर रात यूसुफ की दीदार की उम्मीद में आंखें बंद करती हूँ और सुबह उसके दीदार की आस में उस पत्थर के मुजस्मे के सामने इंतजार करने बैठ जाती हूँ। यूसुफ का इंतजार ही आप मेरा मकसद हयात है। मैं कभी भी मायूस होकर इंतजार करने से नहीं थकूं। अब सिर्फ यूसुफ का इंतजार ही तो मेरे पास रह गया और तुम लोग मुझे से मना कर रही हो। अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे बानो। जहाँ जाना चाहती हैं जाएं। आप दीवानी हो गई हैं, बिल्कुल दीवानी। अगर आपने अपनी जिंदगी बर्बाद कर डाली है तो हम क्यों बर्बाद करें? चलो, मैं तो इतनी सर्दी में बाहर नहीं निकल सकती। इनके लिए अपना दिल जलाना बेकार है। जुलेखा, क्या इस सर्दी में तुम्हारा कोई घर या ठिकाना नहीं है? कसर है ना महल की तरह कुशादा, कब्र की तरह तंग, जिंदान की तरह तारीख। घर है मेरा। जो भी है यहाँ से तो बेहतर होगा। यहाँ तो बीमार पड़ जाओगी। मैं किसी की मुंतज़िर हूँ। किसी ने बताया है कि वो आएगा। अगर नहीं आया तो चली जाऊंगी। चलो चले। क्या हुआ? तुम लोगों ने तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था ना। कोशिश तो बहुत की, लेकिन हो न सका। हमें आपकी आदत हो गई है बानो। बचपन से आँख खोलते ही सिर्फ आप ही को देखा है। आप ही के कसर में पले बड़े हैं। किसी और जगह से तो हम वाकिफ भी नहीं। मेरा पीछा छोड़ दो, मेरी तन्हाइयों में मुखल मत हो। लेकिन हम आपको यूं तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना।
तुम्हारे साथ जब होती हूँ तो तन्हा हो जाती हूँ, वरना हमेशा हर जगह यूसुफ मेरे पास होता है। तुम दोनों के आते वो मुझे छोड़कर चला जाता है। क्या इनका ये इश्क हवस पर मबनी है? क्या अब भी वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखती हैं? मुझे नहीं लगता। अब जुलेखा के पास बचा ही क्या है जो वो कोई नफसानी ख्वाहिश रखें। वो जैसे जैसे बूढ़ी होती जा रही हैं उतनी ही दिल नशीन होती जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं जुलेखा को भी पसंद करने लगी हूँ और इश्क जुलेखा को भी। नाम और पता वगैरह लिख कर दे दो। हम 10 भाई हैं। मैं लावी हूँ, ये शमून, यहूदा, जाद, दान, जबूलू, यसाकिर, अशीर, निफ्ताली, रूबीन। हम सब फर्जंदान याकूब और किनान के रहने वाले हैं। तुम 10 अफराद भाई हो, तिब्स किस लिए आए हो? दूसरे लोग किस लिए आए हैं? हम भी दूसरों की तरह। तुम्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरे सवाल का जवाब दो। तुम लोगों की मिस्र आने की वजह क्या है? हम गंदुम खरीदने के लिए मिस्र आए हैं। हमारी सरजमीन किनान भी कहत की जद में है। हमें बताएं अब हमें क्या करना होगा। हमें मामूर किया गया है कि अजनबी लोगों की मुकम्मल मालूमात हासिल करें। हमें मालूम होना चाहिए कि तुम लोगों ने इससे कब्ल यहाँ से गंदुम हासिल किए या नहीं। आया गंदुम के ताजिर हो या काहत ज़दा। अपने नाम, पते और कुल तादाद लिखो। ये इतने सारे बहाने किस लिए? अगर गंदुम नहीं बेचना है तो इतना तंग क्यों कर रहे हो? ये यहाँ के कवानीन हैं। अगर कबूल नहीं है तो जा सकते हो। जाओ, कोई गंदुम नहीं है यहाँ। बस करो शमून। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ जनाब। अगर ये कवानीन सबके लिए हैं तो हम भी इनका एहतराम करेंगे। आप बताइए अब हमें क्या करना होगा। अपने तमाम कवायद इस कागज पर दर्ज करें। वो हम जनाब यूजारसीफ की खिदमत में पेश करेंगे। देखें वो क्या हुक्म देते हैं। तुम और तुम्हारे दीगर भाई मेरे हुक्म लाने तक यही दरवाजे के बाहर इंतजार करें। बहुत बेहतर जनाब। इसमें लड़ने झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं। हम यहाँ गंदुम लेने आए हैं या लड़ने झगड़ने? तुम लोगों की तो आदत हो गई फितना फसाद की। या नबी खुदा, दरवाजा सूरिया का निगहबान गुजारिशात पेश करना चाहता है। क्या इजाजत है? हाँ, बुला लीजिए उसे। दुरूद बरारी जनाब यूजार से। दुरूद खुदावंद हो तुम पर भी। हाँ कहो, क्या बात है? गुज़िश्ता हफ्ते दरवाज़ा सूर्या से शहर तिब्स में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों की कुल तादाद 390 थी। सब ने एक एक बोरी गंदुम खरीदी और उसी दरवाजे से वापस चले गए। उन सब का ताल्लुक हमारे कुर्ब जवार के हमसाए ममालिक शामात वगैरह से था। बस और कोई ख़ास बात नहीं है। अलबत्ता आज 10 भाई जो अपने ताल्लुक किनान से बताते हैं वारिद शहर होना चाहते हैं। किनान से 10 भाई? नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए हैं। वही है, बनी इसराइल। क्या हुआ नबी खुदा? क्या कोई नाखुशगवार वाकया पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कसरे आखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताएं।
आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादा खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूद